Good morning, students. Today we are going to start matrices. So today we'll be discussing introduction of matrices, types of matrices, and few questions on above topics. So first of all, we discuss what is matrix, how it is defined. Suppose Jatin has two pencils. Then we can write or represent or store this information within the square bracket with the understanding that inside the bracket this number 2 represent the number of pencils of. Suppose Jatin has two pens and three pencils. Now how to store this info? Write pen, pencil. Still we can store inside the square bracket 2 3 with the understanding that first column we have pens and in second column we have pencil. And suppose we have two-person, Radhika and Rohan, having few pens and two. Say he has three pens and two pencil, four pen and one. We can store this info inside the square bracket 3, 2, 4, 1 with the understanding that first row items belonging to Radhika, second row we have articles belonging to Rohan. In the first column of pens, second column we same information I can store like this. Here we can have pens, pencils, item of first person Radhika, Rohan. So Radhika has three pen, पेन के कॉलम में मैं 3 लिख दूं एंड रोहन हैज 4 पेन. तो रोहन हैज 4. देन पेंसिल राधिका के पास 2 है और रोहन के पास 1. So these two systems are giving the same information written in different form. We'll see what is the relation between these two type of matrices later on. So this is what type of, these are type of rectangular arrangement. एक ये arrangement of number है, line है. This is another arrangement of number having one horizontal line and two vertical, row and column. Another arrangement having two horizontal lines, vertical lines, and similarly. So now let us properly define what matrix. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? A matrix is defined as rectangular array or array of numbers. Matrix क्या है? It is a rectangular arrangement or array of numbers arranged in
rows means horizontal lines, and columns. Columns means vertical line. And these arrangement of numbers are enclosed between either a square bracket or a राउंड ब्रैकेट, और कोई ब्रैकेट हम इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करेंगे. तो फॉर एग्जांपल, एंड दीज आर डिनोटेड बाय मैट्रिक्स is generally denoted by capital letters A, B, C. For example, A equal to 2, 1, 3, 1. This is a matrix. A matrix having कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2. कॉलम कितने? 1. So it is a matrix having rows and 3 columns. Similarly, B can use this symbol also, bracket, but no other. 2, 3, 5. This is a matrix having how many horizontal lines? 1, 2. So 3 rows. Vertical lines, 1, 2 columns. Having 3 rows and 2 columns. So let us proceed further. So we have defined a, for example, question ले लेते हैं. Which of the following arrangement of numbers represent the matrix? 2, 1, 2, 1. See the first one. It is rectangular arrangement of number. Horizontal lines, vertical lines, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में. This is a matrix. This arrangement of number, 1 row, 1 horizontal line, no problem. Vertical column, no. So it's a matrix having 1 row and 2 vertical lines, means 2 columns. So it is a, again this is a arrangement of number having 2 rows and 1 column enclosed between this round bracket. चलेगा. मैंने बताया मैट्रिक्स का सिंबल ये हो सकता. दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर यहाँ पे तो है ये, अब रेक्टेंगुलर नहीं हुआ ना, ये यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एलिमेंट. इट वी कांट कॉल दिस एज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो दिस इज ए, अब ये अरेंजमेंट तो रेक्टेंगुलर है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, और सब में नंबर्स भी है, लेकिन ये इनसाइड दिस ब्रैकेट, दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट वी कांट यूज फॉर
Now we will define what is order of a matrix. If a matrix has m rows and n columns, the matrix has m rows and n columns, then its order is defined as m cross n and written as or denoted by O means order, E means of matrix A, order of a matrix A, m cross n, and we'll see there will be mn elements and number of elements in A will be m into. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज A is a matrix 2 1 3 1 1. B is a matrix 3 is 1 2 3. तो ऑर्डर ऑफ ए में कितनी रोज हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 2 रोज हो गई, 3 वर्टिकल कॉलम्स है, 3 वर्टिकल लाइंस है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड. तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल क्रॉस 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 2 into 3. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी में देखें 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 2 ही वर्टिकल लाइंस है, तो 2 क्रॉस 2. तो हमेशा पहले ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले कितनी रोज हैं फिर कितने कॉलम है, रो पहले आएगी फिर कॉलम. इसका ऑर्डर हम 3 क्रॉस 2 नहीं लिख सकते, 2 रोज है तो 2 क्रॉस 3. फिर सी में ऑर्डर ऑफ सी और बी में एलिमेंट्स कितने होंगे 2 into 2. ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रोज तो 2 हैं, कॉलम 1 है, इट इज 1 कॉलम 2 रोज, 2 रोज तो रोज पहले आएंगी 1 कॉलम. एंड डी में एक ही वर्टिकल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 क्रॉस 1. और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज, डी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So this is how we can write order of a matrix and number of elements. क्वेश्चन एक ले लेते हैं छोटा सा. What are possible element? What are possible orders of a matrix having 2 elements, 6 elements, 12, 4, 5 elements. तो भी हमने देखा था अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, ऑर्डर इज m क्रॉस n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी यूजिंग दिस फॉर्म. तो फर्स्ट केस में क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2. कैसे बनेगा, 2 क्रॉस 1 से 2 बनेगा और 1 क्रॉस 2 से 2 बनेगा. सेकंड में पॉसिबल ऑर्डर्स आर 6 बनेगा 1 क्रॉस 6 से,
2 क्रॉस 3 से, 3 क्रॉस 2 से और 6 क्रॉस 1। सिमिलरली थर्ड में 12 एलिमेंट्स हैं, तो 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, फैक्टर लिखते जाइए, 4 क्रॉस 3, और कैसे लिख सकते, 6 क्रॉस 2 एंड 12 क्रॉस 5 एलिमेंट्स, 1 क्रॉस 5 एक पॉसिबिलिटी, 5 क्रॉस 1 पॉसिबिलिटी, 5 का और कोई फैक्टर होगा नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर गिवन है तो हम पॉसिबल ऑर्डर्स बता सकते। नाउ विल डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, suppose I have a matrix of order 2 क्रॉस, एक एग्जांपल लिखते हैं, 2 1, 3 कॉलम्स है, 5, तो इसमें 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये जो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसका एक नेम देंगे A11, एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर A12, ये एलिमेंट है फर्स्ट, तो रो है इसकी, सबसे पहले रो डिसाइड करेंगे, रो नंबर आएगा तो कौन सी ओरिजेंटल लाइन में है, फर्स्ट में, वर्टिकल कॉलम में, तो दिस विल कॉल। सिमिलरली A13 is element of first row and third column, it is 3, तो A21 second row first column, it is 1, 2, 2 is 5, A2। तो सबसे पहले तो AIJ हम डिफाइन करेंगे, एलिमेंट ऑफ ith रो ith, so what is Aij, element of ith row and jth column। तो मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स A लिखनी है, का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, शक्ल कैसी, 2 रो होंगी, फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड, तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 हो गया, सेकंड रो सेकंड। इसी तरीके से सपोज 3 क्रॉस 3, तो इसमें शक्ल कैसी होगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड, फर्स्ट रो है, थर्ड, सिमिलरली सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। अब हम एक जनरल केस में, तो इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कैसे हम बना लेते हैं, तो इसमें भी पहले फर्स्ट रो होगी, फिर थर्ड रो होगी, लास्ट में m रोज, ये mth रो तक जाएगा, कहीं ith रो भी होगी, 1 2 3 और m, फिर फर्स्ट रो, बाहर के नंबर समझाने के लिए लिखे, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम,
थर्ड कॉलम होगा, लास्ट में nth कॉलम होगा, 1 और n की 8th कॉलम ले लो। तो ये एलिमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में A1 फर्स्ट रो nth कॉलम, फिर सेकंड में यहाँ तो 2 ही आएगा ना, कॉलम इज फर्स्ट, रो इज 2, रो इज 2, कॉलम इज सेकंड रो, jth कॉलम, सेकंड A31, A3, फिर बीच में jth कॉलम होगा तो A फिर ये डॉट लगा दीजिए रोज, AI1 ith फर्स्ट कॉलम, ith सेकंड, ith थर्ड कॉलम, ith रो, jth कॉलम, Aij एलिमेंट ऑफ ith एंड n, फिर लास्ट रो होगी AM1, AM2, AM3, J, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते, और वी कैन राइट A इज ए मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij हैं, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, वेयर आई कहाँ से कहाँ वेरी, आई क्या है, रो नंबर, रो कितनी है, फर्स्ट रो है 1 है, 2 है, 3 और m, तो आई वेरी कर रहा है 1 2 एंड j वेरी करेगा 1 2, फर्स्ट कॉलम इज देयर, कॉलम थर्ड कॉलम अब nth कॉलम, तो j वेरीज फ्रॉम 1 2, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले, क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एलिमेंट आर गिवन बाय Aij टू i प्लस j, और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखनी है तो 2 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड से आगे नहीं होगा ना कॉलम के ऊपर, फिर सेकंड रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो में अब Aij का फॉर्मूला ये दिया होगा, Aij इज डिफाइंड एज i प्लस j, तो A11 क्या होगा, 1 + 1 2, 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 1 + 2 3 2, 2 + 2, क्वेश्चन 2, if A matrix Aij 3 × 3 such that Aij maximum of Ij minus minimum of, the question राइट ए मैट्रिक्स को हमने, लेटेस्ट राइट मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स, 3 रो कॉलम होंगे, A11 A12 13, थर्ड कॉलम पे खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम
थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ए आई जे क्या दे रखा है, मैक्सिमम ऑफ आई जे, आई और जे में जो मैक्स वो ये हो, A12 में 1 और 2 में से कौन नंबर मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू मिनिमम ऑफ आई जे, आई और जे में जो मिनिमम होगा, इस केस में मिनिमम 1 और 2 में से थ्री केसेस। तो A11 में आई और जे दोनों 1 और 1 है, आई भी 1 है, जे तो 1 और 1 का मैक्सिमम भी 1 होगा, मिनिमम भी 1 होगा। तो फिर A12 मैक्सिमम 2, A12 में मैक्सिमम 2 देगी और A12 में मिनिमम 1, तो ये वैल्यू, तो A12 में मैक्सिमम 2 है, मिनिमम -1। A13 मैक्सिमम 1 और 3 का 3 है, 3 A13 में मिनिमम इज, तो मैक्सिमम इज 3, मिनिमम। सिमिलरली A21 में मैक्सिमम इज 2 -1, 2 और 2 में मैक्सिमम भी 2 है, मिनिमम 2, 3 में मैक्सिमम 3 है। सिमिलरली 3 -1 3। Let us do few more question. Construct a P cross P matrix. Elements are by formula Aij 2 if I is not equal to j, 0 if I। तो यहाँ भी हम पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख, जरूरी नहीं है आपको क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, तो 1 1 1 T1 T2। अब फॉर्मूला समझिए, जब भी आई नॉट इक्वल रो और कॉलम नंबर डिफरेंट, और जब आई और जे इक्वल हैं तो वैल्यू, तो यहाँ पे आई और जे 1 1 में आई और जे दोनों 1 1 है, 2 2 में 2 है, 3 3 में 3 है, सबकी वैल्यू। क्वेश्चन है A11 में आई इक्वल है, A22 में आई और जे इक्वल है A3। तो जब भी आई और जे इक्वल नहीं 1 2 में इज नॉट, तो जब भी ये अनइक्वल है ना और कॉलम T1 अनइक्वल, सबकी वैल्यू यहाँ पे 2 डिफाइन। चलो इसको पार्ट 1 पार्ट 2, ए आई जे जी आई इक्वल टू जे 0 इफ आई इज। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जब इक्वल है तो वैल्यू 3 है, यहाँ पे A11 A22 A33 आई और जे इक्वल है, तो और इन सब में अनइक्वल है, 1 में आई और जे 3 1 है, इन सब में आई और जे अनइक्वल है, तो जब अनइक्वल है तो यहाँ दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स फ्रॉम ए गिवन फॉर्मूला। और क्वेश्चन
if how many matrices of order 3 cross 3 are possible if each element is either 1, तो आपके पास कितनी ऐसी मैट्रिक्स इसमें हर एलिमेंट या तो 1 हो या 0, A1 1 A, ये मन में ये सब लिख रहा हूँ, A2 1 2 3 T1 T2, तो हमें कितने एलिमेंट चूज करने हैं? वी हैव 9 एलिमेंट, 3 ये 9 एलिमेंट, ईच एलिमेंट can be chosen in 2 ways, that is 1 और 0, या तो वो 1 होगा या 0 होगा, तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है। तो इसके पास कितनी चॉइस है? पास कितनी चॉइसेस है? पास कितनी चॉइसेस है? 2 choices. Each element can be chosen in 2 ways and we have 9 elements to choose. So possible number of matrices equal to 2 into 2 into 5. अब मान लीजिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, शॉर्ट में लिख 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स which each element is either -1 or 0 or 1. How many matrix? 2 क्रॉस 2 में अब हर एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस हैं और हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस 4 की पावर 3, 4 से। तो ये आप अरेंजमेंट 7 में पढ़ा था, उसको यूज करके इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग टॉपिक है, तो वी गो स्लो ऑन दिस टॉपिक स्टार्टिंग। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहे।